Good morning, students. We are continuing the chapter 18 Vilasya Vani Na Kadapi Mein Shruta, and I hope you learn and that story of this chapter. If you want, I am telling you once again this story. And then I take the exercise of this chapter. In any, I am not going to teach line by line. Line by line, you know. You want to line by line or the story. Story, you know na, that one lion in any forest and he was very hungry and he goes to search for food in jungle and he didn't find anything for food. Then he saw a big cave and he think that suddenly any animal can come here and he will become my food. So I stay here by hiding. And after some times the king of that cave, one fox named Dadipucha came there and he saw. As soon as he entered that cave, he saw, at that time he saw the footprints of lion entering in the cave. But he didn't saw that the returning footstep of lion. So he understood that certainly in this cave one lion is there, and if I entered in this cave, I become the food for him and I will kill. मैं तो मारा जाऊंगा. So he make a idea. He make an idea. वो उसने दिमाग लगाया because the fox is very clever animal. So he think idea and he started to speak with that cave. That cave, you are you not listening me that you and between I and you make a condition, make a word that you we will decide a condition that if I come from outside, you will call me. And why you are not calling me today? So if you are not calling me, I will go to another cave. Then what happened? The lion was in the cave, so he heard that voice and he think by the fearness of me, certainly this cave is not calling to his king. So don't worry. No, so I will call him. So let's I call him, and he started by his roaring, by loud roaring of the lion's voices roared. So and by loud roaring of the lion, all animals of that forest become frightened, and they all hidden वो जो है hidden and they ran away far, and also that fox ran away. उसके वो समझ गया कि अंदर तो ये fox है. So it is said that who didn't think about his upcoming days, he always become in grief. वो हमेशा grief में रहते हैं. And who think about the upcoming days, he will stay, he will live happily. And also said that in this forest, by living in this forest, I become old. Now I become old, but I never heard the voice of Bill. तो बिल की वाणी हमने कभी नहीं सुनी. This was the story. And now take the exercise of it.
we are going to solve the exercise. First one is see in your book. विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत्वा. जैसे कि जो इसमें है ऑप्शंस दिए गए हैं. by seeing the options you give the answer. कीदृशः सिंहः वने इतः ततः परिभ्रमण अकरोत्. कैसा क्षुधार्तः, कैसा वो लायन था जो इधर उधर भ्रमण कर रहा था इस वन में. तो he was very hungry. So hungry के लिए वर्ड क्या है? क्षुधार्त. तो क्षुधार्त मैंने लिखा था that day. आप लोगों ने लर्न किया होगा. तो आप अगर मीनिंग जानोगे ना तो ये आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा. So I am telling you again and again, learn the word meaning properly and it is very necessary for you. तो यहाँ पे आ गया क्षुधार्थ. And second one is श्रीगालस्य नाम किम आसीत्. आसीत् means था, was. So what was the name of that fox? दधिपुच्छः. दधिपुच्छः है ना. घ में दधिपुच्छः, तो वहाँ पे आपने टिक लगा. And third one is श्रीगालस्य गुहायां कः प्रविष्टः. सिंह प्रविष्टः. लायन प्रवेश कर गया था. लायन सिंह प्रविष्टः. एक वाक्य में संस्कृत भाषा उत्तरं लिखत. सूर्यास्त समय सिंह किम अपश्यत्. सूर्यास्त समय सिंह एकां गुहां दूसरा का पहला. सूर्यास्त समय सिंह एकां गुहां अपश्यत्. ये जो है क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा रहेगा कि राइट इन संस्कृत इन वन सेंटेंस. सो राइट इन वन सेंटेंस प्रॉपर्ली. श्रीगालः कस्य पद पद्धति अपश्यत्. श्रीगालः सिंहस्य पद पद्धतिम् अपश्यत्. इसको थोड़ा बड़ा लिखना. अपश्यत्. थर्ड वन श्रीगालस्य वचनं श्रुत्वा सिंहः किम् अकरोत्. श्रीगालस्य वचनं श्रुत्वा सिंहः किम् अकरोत्. श्रीगालस्य वचनं श्रुत्वा सिंहः उच्चैः अगर्जयत्. जोर जोर से वो आवाज लगाने लगा. जिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इति वाक्यं कः वदति.
तंत्रस्य रचयिता कः आसीत्। तो आप लोग को लिखना है पंचतंत्र से रचयिता कः की जगह लिखना है विष्णु शर्मा आसीत्। अगर विष्णु शर्मा साथ में लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे एक साथ विष्णु शर्मा। अगर आप अलग वर्ड बना देते हो तो इसको फिर विष्णु में विसर्ग डालना पड़ेगा और शर्मा, विष्णु शर्मा आसीत्। और क्या है कि ये कहाँ से ली गई है, हाँ, सिंहस्य नाम एडिशनल क्वेश्चन 1। तो सिंहस्य नाम सिंह आसीत्। तो सिंह का नाम क्या था, सिंहस्य नाम आपको लिखना है खरद खरद। एक लाइन में लिखना होगा आपको कि सिंहस्य नाम किम की जगह ये आ जाएगा खरद खरद आसीत्। खंड में है कि श्रृंगारस्य नाम, श्रृंगारस्य नाम किम आसीत्। श्रृंगारस्य नाम किम आसीत्। तो इसमें होगा कि श्रृंगारस्य नाम किम की जगह यहाँ पे लिखना है श्रृंगारस्य नाम दधिपुच्छः, दधिपुच्छः। फिर ये यहाँ पे आसीत्। और एक बनेगा कि एक क्वेश्चन इसमें से होगा कि गुहायाः नृपः, यहाँ पे नहीं आ पाएगा तो आप ऊपर देख लो 4 नंबर, यहाँ लिखती हूँ हाँ 4 नंबर एडिशनल क्वेश्चन कि गुहायाः नृपः कः आसीत्। गुहायाः नृपः कः आसीत्। तो कौन था गुहायाः, तो आपको लिखना है गुहायाः नृपः, फिर कः की जगह दे देना है गुहायाः नृपः एकः शृगालः, एकः शृगालः आसीत् लिख सकते हो या दधिपुच्छः आसीत्, उसका नाम भी दे सकते हो दधिपुच्छः आसीत्। समझ गए, ये भी दे सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, दोनों लिख देंगे एकः शृगालः दधिपुच्छः आसीत् तो और भी अच्छी बात है, सब आ गए। अंडरस्टूड। घटना क्रमानुसारान् व्याख्यानि लिखत शृगालः अपि ततः दूरं पलायन् नः इदम् अपठत्। क्षुधार्तः सिंहः किंचिदपि आहारं न अलभत। ये पहले आएगा क्षुधार्तः सिंहः, ये आप लोग लिख लो, ये कंप्लीट हुआ।
अभी तीसरा है देखो, पहले आएगा कि क्षुधार्थ सिंह किंचिदपि आहारम न अलभत, दूसरा वाला पहले आ जाएगा। क्षुधार्थ सिंह किंचिदपि आहारम न अलभत। हाँ, फिर आएगा कि इत्थम विचार सिंह शशस्त्रिकाल से प्रभो भी अतः अत्रैव निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि। अतः अहम अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। एक काम करती हूँ, उसको ऐसे बता देती हूँ, इसको लिखने की तो जरूरत नहीं है, बुक में है ही, सो दैट्स व्हाई। पहला में तो आ जाएगा कि क्षुधार्थ सिंह किंचिदपि आहारम न अलभत, उसमें पहला बना लो, और देन आ जाएगा कि इत्थम विचारे न अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, वो फिर वहाँ निगूढ़ होकर बैठ जाता है। देन व्हाट हैपेंड, देन भोविल किम न स्मरसि, उसके बाद श्रीगाल बोलता है भोविल किम न स्मरसि, चौथा वाला नंबरिंग में लिख देती हूँ, चौथा। फिर आ जाएगा कि यदि तुम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं विलं यास्यामि, ये 6 वाला। फिर क्या करता है, इत्थम विचारे सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, थर्ड वन। श्रीगाल अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्, एक। अंडरस्टूड? ये देखो पहले सेकेंड 5 4 6 3 1, दिस इज द राइट आंसर। और इसमें से लिखा ही हुआ है, सेम चीज लिखना है, बस नंबरिंग देख लो, पहले दूसरा आएगा, पांचवा आएगा, चौथा आएगा, छठा आएगा, तीसरा आएगा और पहला आएगा। जब आप स्टोरी पढ़ोगे ना तो ये खुद आपको समझ आ जाएगी बात, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कृदंत प्रकारम लिखत दृष्ट्वा, फोर्थ में क्या है कि कृदंत प्रकार लिखना है, मीन्स कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में है ऐसे, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, कत्वा का जो है तो आ बचता है, तो ये जानना चाहिए। सेकेंड वन इज भूत्वा, इसी तरह भूत्वा विचिन्त्य कर्तुम् प्रविश्य, तो भूत्वा में है भू धातु और यही सेम कत्वा प्रत्यय क्वा, विचिन्त्य, विचिन्त धातु
कर्तुम, क्री धातु और तुमुल प्रत्यय। प्रविश्य, प्रविश धातु ल्यस प्रत्यय। दिस इज द फोर्थ वन आंसर। स्म प्रयोगे क्रियापदानि परिवर्तयत्। स्म, अभी मैंने बताया ना कि स्म जब लग जाता है तो आसित मीनिंग हो जाता है था, तब उन लोगों को लग लकार लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अपठत, तो पठती स्म लिख देंगे तो सेम मीनिंग। अपठत जहाँ है वहाँ अगर आप पठती स्म लिख दोगे तो द मीनिंग इज सेम। The meaning will be same। जैसे कि पांचवा में देखो पहला अचिंत्यत वर्ड है। अचिंत्यत, तो इसमें इसको हम लोग बनाएंगे जब स्म प्रयोगे, तो आपको इसके चिंतयति, चिंतयति मतलब ही इज थिंकिंग, बट अगर इसमें स्म जोड़ दिए चिंतयति स्म, तो ये जस्ट लाइक अचिंत्यत हो गया। स्म जोड़ते ही ये अचिंत्यत का मीनिंग दे दिया कि वो थिंक्ड। अगर स्म हटा दिया तो मतलब हो गया इज थिंकिंग, और बट स्म जब लग गया तो थिंक्ड हो गया, पास्ट टेंस में चला गया। अगच्छत इसी तरह है अगच्छत, अगच्छत, अगच्छत भी लाइक दिस कि गच्छति, इसमें से क्या निकला गच्छति, इज गोइंग, इज गोइंग। This word's meaning is going, but if you add sma here, then just like agachat, went, इसका मतलब हो गया went। थर्ड में है अपठत, अपठत, अपठत में हो गया पठती, पठती, reading, is reading, is reading, and when we add sma, the meaning is read। अपठत like अपठत read, and one is अवशत, अवसत, फोर्थ वन इज अवशत। यहाँ क्यों देखो फिफ्थ का फोर्थ अवसत, ये हो गया इक्वल टू वसति स्म, वसति स्म। आंसर तो यही है, आपको लिखना यही है। वसति मतलब इज स्टेइंग, इज लिविंग, बट इज स्म जुड़ते ही क्या हो गया लिव्ड, वो पास्ट टेंस का रूप हो गया कि वो रहा वहां पे। अंडरस्टूड। समास प्रकारं लिखतः सूर्यास्तः, सूर्यस्य अस्तः इति, सूर्यास्तः, उसका डिसोल्यूशन करेंगे तो सूर्यस्य अस्तः, सूर्य का अस्त होता है। तो यहाँ है षष्ठी का षष्ठी तत्पुरुष, यू कैन राइट हियर षष्ठी तत्पुरुष। छठा समास वर्ग, छठा का पहला
सूर्यास्तः। जो डिसोल्यूशन पहले लिखना है सूर्यस्य अस्तः। तो यहाँ पे ये मीनिंग क्या आ गया कि षष्ठी तत्पुरुष समास। ओके। सेकेंड वन में है पद पद्धति है गीता। पद पद्धति, पदस्य पद्धति, उसके पद की जो पैर की जो है इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है गीता। हयात भीतर पंचमी तत्पुरुष। गर्जन प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि गर्जन अस्ति यस्य सः। गर्जन प्रतिध्वनि, ध्वनि गर्जनस्य ध्वनि, ये भी हो सकता है गर्जन ध्वनि का रिजोल्यूशन। और ये भी हो सकता है कि गर्जन प्रतिध्वनि, वो ध्वनि कैसी है, गर्जन ध्वनि, तो गर्जनस्य ध्वनि, तो षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं। तो अब 2-3 अंक बचे 7th 8th और 9th। तो ये नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगी। आज के लिए बस इतना ही। ये सारे हो गए, 6 तक हो गए। 7th 8th और 9th में है अव्यय पदानाम अर्थम लिखत यदा। ये करा दो आज। फिर अपने को 7वां और 8वां क्वेश्चन आंसर रह जाएगा। 9वां में देख लो आज टाइम है। अव्यय पदानाम अर्थम लिखत। पहला है यदा। यदा मीन्स व्हेन, जब। दूसरा है तथा। Like that. वैसे या वैसा। पुत्र। तीसरा है पुत्र। Where. Where. कहाँ। इतर। चौथा है इतर। हियर, यहाँ। सर्वदा। सर्वदा। ऑलवेज। हमेशा। फॉरएवर। हो गया 5 ही इसमें। अब आंग्ल भाषायाम इंग्लिश में उत्तर देने वाला और संस्कृत में उत्तर देने वाला, ये 2 बचे। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये सब आप लोग लर्न करके रखना। ओके। Stay safe and stay home.